Multiplication of decimals. Multiply the two decimal without the decimal point just like whole number. For example, 73.68 and 5.4. So just multiply them as whole number. 73.6854. 8 4 the 32, 3 carry, 6 4 the 20, 4 6 the 24, 24 plus 3, 27, 2 carry. 4 is the 12, 13, 14, 4, 1 carry. 7 4 is the 28 plus 1, 29. 5 8 is the 40, 4 carry. 5 6 is the 30 plus 4, 34, 3 carry. 5 3 is the 15, 16, 17, 18, 1 carry. 5 7 is the 35 plus 1, 36. 2, 7, 8, 17, 1 carry. 9 and 3. We have multiplied them just as whole number. Now put decimals. So 397,872. Now put decimals. So पहले यहाँ लगाएंगे हम जहाँ पोजीशन पे था 73.68 and 5.4. So there are two digits after decimal and here is only one digit after decimal. So total number of digits after decimal are 3. Total 3 digits are there after decimal. Mark the decimal point in the product in such a way that the number of decimal places in the product is equal to the sum of the decimal places in the given decimals. So given decimals are 73.68 and 5.4. 6, 8. 2 digits are there. 2 लिख दिया हमने. After decimal only one digit is there. So we have written 1. Total 3 digits are there after decimal. So it should be product में जो decimal place होना चाहिए वो that should be equal to the sum of the decimal places. इन दोनों के decimal places के sum के equal होना चाहिए. So 3 होना चाहिए. So start counting from right hand side. So 1, 2, 3. After 3 digits we will put decimal. We will mark the decimal point here. This is the rule. Now exercise 3C. Question number 1 is find the product. First part is 73.92 multiplied by 10. There are two methods. One is complete multiplication and second is by direct method. Direct method में क्या होगा 73.92. Remove the decimal first. Put the 0 here. यहाँ हो गया. अब डेसिमल के बाद में देर आर ओनली 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल और यहाँ कुछ भी नहीं है तो डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स है. सो स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड 1 2 और 2 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लग जाएगा. दिस इज द डायरेक्ट मेथड. सेकेंड है पूरा मल्टीप्लीकेशन करके मल्टीप्लाइड बाय 10. ओके 0 0 0 0 3 9 3 7. Okay 0 3 9 3 7. Then there are 2 digit after decimal और यहाँ decimal के बाद कुछ नहीं है. So 2 के बाद में right hand side से start करो counting 1 2 after 2 we can put 0. It is 2 so you can write 2 here. Okay understood. Direct method है when the there are numbers which are multiple of 10 we can use direct method. जैसे 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh ऐसे नंबर्स हो तो हम डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं. और अगर डेसिमल दूसरे डेसिमल नंबर्स हो तो उसके लिए हम पूरा मल्टीप्लिकेशन करते हैं. लेट अस टेक अनदर एग्जाम अनदर क्वेश्चन. थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज 84.003 मल्टीप्लाइड बाय 10. अब डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग करेंगे हम इसको 0.0030. ओके पॉइंट हटा दिया हमने और 10 हमने 10 वाला भी लिख दिया. अब डेसिमल के बाद में 1 2 3 डिजिट्स आर देयर. इसमें कोई डिजिट नहीं है सो टोटली 3 डिजिट्स आर आफ्टर डेसिमल. सो 1 2 3 एंड मार्क द डेसिमल हियर. सो आंसर विल बी 840.03. नो नीड टू राइट दिस 0. डेसिमल के नंबर्स के बाद में जितने भी 0 होते हैं उनका कोई वैल्यू नहीं होती है. ओके नेक्स्ट find the product. Question number 2 is also
फाइंड द प्रोडक्ट, लेकिन फर्स्ट वाले में था 10 से मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे, नाउ वी आर मल्टीप्लाइंग देम बाय 100. सो सेम हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे. 2 3 9 7, पहले हम होल नंबर की तरह लिखेंगे इनको विदाउट डेसिमल एंड 2 zeros. ओके, नाउ देर आर 3 डिजिट आफ्टर डेसिमल, और यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई भी डिजिट नहीं है डेसिमल के बाद में. सो 3 डिजिट के बाद में आपको डेसिमल लगाना है. सो स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड, 1 2 एंड 3 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगाएंगे. तो दिस इज 239.700. So you can write it as 239.7 because डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स के बाद में जो जीरोस हैं वो कोई मैटर नहीं करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज 2.9. सो रिमूव दिस डेसिमल एंड 100 के 2 zeros आप यहाँ लगा देंगे. नाउ देर इज ओनली 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल, और इसमें कोई डिजिट नहीं है. सो 1 डिजिट के बाद में आप डेसिमल लगा देंगे. इट विल बी 290. 0 की कोई वैल्यू नहीं है. Now question number 3 is also find the product, but अब 1000 वाला आ गया. But it is 7314 multiplied by 1000. अब 1000 है तो 3 zeros लगाने हैं आपको. तो 67314 3 zeros. Okay, now there are 4 digit after decimal. तो हमें राइट हैंड साइड से 4 डिजिट काउंट करने हैं. 1 2 3 एंड 4. तो 4 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगाएंगे. सो एज आई टोल्ड यू कि ये जीरोस मैटर नहीं करते हैं, तो इनको हम रिमूव कर देंगे. तो आंसर विल बी 6731.4. ओके, लेट अस डू इट्स थर्ड पार्ट. 0.076 multiplied by 1000. Again the same method is there. 0076 विदाउट डेसिमल हम पहले लिखेंगे एंड 3 zeros इसके पीछे. आफ्टर डेसिमल देर आर 3 डिजिट्स. सो स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड, 1 2 3 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा देंगे. आंसर विल बी 76. ये जो जीरोस है ये मैटर नहीं करते. सो आंसर विल बी 76. ओके, यस. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो फाइंड द प्रोडक्ट, बट आप देखेंगे डिफरेंस इसमें दोनों ही नंबर्स हैं. वो जीरोस वाले यार 10 की मल्टीपल्स नहीं है. सो इनको हमें मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा. 5.4 मल्टीप्लाइड बाय 16. तो पहले हम इसको एज अ होल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे एंड डेसिमल डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट में लगाएंगे. बीच में कहीं डेसिमल यूज नहीं होगा. ओके, सो 6 4 24, 2 कैरी, 5 6 30 एंड 2 32, 1 4 4, 1 5 5. नाउ एड देम. 4 4 plus 2 6, 5 plus 3 8. ओके, 864. लेकिन अब डेसिमल देर इज ओनली 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल एंड यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है. सो टोटल इज 1. यानी आपको राइट हैंड साइड से 1 डिजिट काउंट करना है और 1 डिजिट के बाद डेसिमल मार्क करना है. सो आंसर विल बी 86.4. दिस इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट इज 36.73 multiplied by 48. So 36.73 multiplied by 48. Multiply them as the whole number. 8 3 is 24, 2 carry. 8 7 is 56 plus 2 58, 5 carry. 8 6 is 48, 48 plus 5 53, 5 carry. 8 is 24, 24 plus 5 29. Now 4 3 is 12, 2 1 carry. 4 7 is 28 plus 1 29, 2 carry. 4 6 is 24, 24 plus 2 26, 2 carry. 4 3 is 12, 13 14. Okay, now add them all. 4 8 plus 2 10, 1 carry. 9 plus 4 13, 1 carry. 16 1 carry. 7 1. Now there are 2 digit after decimal and there is 0 digit after decimal. So total is 2. यानी 2 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है. इट इज 1763.04. अब पहले है उसको आप हटा नहीं सकते, लेकिन अगर इस 4 के बाद में 0 होते तो हम उनको रिमूव कर सकते. इससे पहले वाले जीरोस को आप रिमूव नहीं करेंगे. Now question number 5 is also find the product. In this both the numbers are decimal numbers.
दिस इज द डिफरेंस, ये डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में। क्वेश्चन नंबर 4 में वन नंबर जो था वो डेसिमल का था एंड द अदर वन वाज होल नंबर, उनमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा था। बट अब जो है दोनों ही बोथ द नंबर्स आर डेसिमल नंबर, सो मल्टीप्लाई देम। 4.9, पहले हम काउंट कर लें। देयर आर 3 डिजिट आफ्टर डेसिमल एंड देयर इज 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल, टोटल 4 डिजिट्स आर आफ्टर डेसिमल। सो प्रोडक्ट जो आएगा उसमें आपको 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, अदरवाइज बाकी सब कुछ सेम है जैसे हम होल नंबर्स में करते हैं अभी तक। 8 9 72, 7 कैरी, 9 6 54, 54 प्लस 7 61, 1 6 कैरी, 9 5 45, 45 45 प्लस 6 51 multiplied 4 8 32, 3 carry, 6 4 24, 25 26 27, 2 carry, 4 5 20 और 2 22, 3 8 7 2। ओके, नाउ एज वी हैव काउंटेड, हमने पहले काउंट करके रखा है कि 3 डिजिट है आफ्टर डेसिमल और 1 डिजिट है आफ्टर डेसिमल। 3 + 1 4 हो गया, तो 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज 0.623 मल्टीप्लाइड बाय 0.75। 5 3 15, 1 कैरी, 5 2 10 + 1 11, 1 कैरी, 6 5 30 + 1 31, 7 3 21, 2 कैरी, 7 2 14, 15 16, 6 1 carry, 6 7 42 plus 1 43. Okay, add them 5 2 7 6 4 3. There are 3 digits after decimal. There are 2 digits after decimal. Total 5 digits are there after decimal. So count 5 digits. 1 2 3 4 5 means you have to mark decimal here. But ये directly स्टार्टिंग डेसिमल से नहीं होती, तो आप पहले आगे 0 लगा देंगे। 0.46725। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो फाइंड द प्रोडक्ट। इसमें क्या है, 3 नंबर्स हैं। अब 13 मल्टीप्लाइड बाय 1.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.13। अब 3 नंबर्स हैं, तो पहले इनमें क्या करेंगे, ग्रुपिंग कर देंगे। फर्स्ट 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड द प्रोडक्ट जो आएगा उससे हम थर्ड वाले को करेंगे। सो 13 मल्टीप्लाइड बाय 1.3, एज वी नो दैट 13 मल्टीप्लाइड बाय 13 होता है 169, स्क्वायर होता है इसका। सो 169, देयर इज डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट, तो 1 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा सकते हैं। ओके, देन मल्टीप्लाई बाय 0.13। ओके, सो इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम। 169, इसमें हम 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। आप चाहें तो पूरा मल्टीप्लिकेशन करके फिर चेक कर सकते हैं। मल्टीप्लाइड बाय 0.13, 3 9 27, 2 कैरी, 3 6 18, 18 19 20 21 22 23 24 25, 5 2 कैरी, 3 1 3, 3 1 3 4 5, 9 6 1, 2 9 plus 5 14, I'm solving this again. 9 3 are 27, 2 carry. Okay, 3 6 are 18, 19 20 0, 2 carry, 3 1 are 3 plus 2 5, 9 1 are 9, 6 1 are 6, 1 1 are 1. Okay, 7 इस 0 से मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं होती, ये सिर्फ इसको डिफाइन करने के लिए है। ठीक है, जैसे 0.1 और 0.1, सो 0.1 को डिफाइन करने के लिए हम लोग आगे 0 लगाते हैं। ओके, सो इसका मल्टीप्लिकेशन से इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, सो 1 9 are 9, 1 6 are 6, and 1 1 are 1. नाउ ऐड देम। 9 6 plus 5 11, आंसर इज 2197। अब हमें काउंट करने कितने डिजिट है डेसिमल के बाद में। देयर वाज 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल एंड देयर आर 2, so 1 plus 2, 3 digits are there। 1 2 3, 3 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगाएंगे, इट विल बी 2.197।
Okay, fourth part of the question is 0.2 multiplied by 0.02 multiplied by 0.002. So as we know that 0. पहले हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, इन दो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 2 2 सा 4 होता है. ओके, देयर इज 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल एंड देयर आर 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल. सो 1 and 2 3 डिजिट हो गए, यानी कि हमारे पास 4 है. वी कैन राइट जीरोज हियर. यहाँ नहीं लिखेंगे, पीछे नहीं लिखेंगे. विल राइट एट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द 4, नॉट एट राइट हैंड साइड, बिकॉज राइट हैंड साइड पे लिखने से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है एंड लेफ्ट हैंड साइड पे लिखने से उसकी वैल्यू कम होती है. ओके, सो 0.2 multiplied by 0.02, that will be 0.004. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लास्ट वाले नंबर से 0.002. नाउ 4 2 ज़ा 8. ओके, 1 2 3 3 6 डिजिट्स आर आफ्टर डेसिमल. सो 1 तो हमारे पास में है. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 6 हो गए 0.0. जिनको ऐसे प्रॉब्लम हो रही है वो पूरा मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर सकते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज इवैल्यूएट. इसमें फर्स्ट पार्ट है 1.2 स्क्वायर. स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स लिखना है. 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.2. एज यू नो दैट 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 का स्क्वायर होता है 144. ओके, so 144, there is 1 digit after decimal and here also 1 digit. 1 and 1 2 digits are after decimal. So 1 2 digit के बाद आप decimal लगा देंगे. Okay, then second part of the question is 0.7 square. So 0.7 square means 0.7 multiplied by 0.7. 7 sevens are 49. Okay, there is 1 digit after decimal. Here also 1 digit after decimal. So 2 digit के बाद आपको decimal लगाना है, तो 1 2. Okay, and 0 to define the number. Now question number 8 is also evaluate, but इसमें क्या है, change. इधर cube है. Cube means we have to write it 3 times. 0.3 multiplied by 0.3 multiplied by 0.3. 3 3 is 9, 9 3 is 27. Okay, now see, 1 digit after decimal 1 and 1. तो total हो गए 1 1 1. 3 digits हो गए, बट हियर ओनली 2 डिजिट्स आर देयर. तो मैंने आपको पहले बताया लेफ्ट हैंड साइड में हम 0 ऐड कर सकते हैं, राइट हैंड साइड में नहीं. सो ऐड 1 मोर 0 हियर एंड अब 3 डिजिट्स हो गए. नाउ वी कैन मार्क डेसिमल एंड 0. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज अ बस कैन कवर 62.5 किलोमीटर in 1 hour. How much distance can it cover in 18 hours? Okay, in 1 hour it can cover 62.5 kilometer. In 18 hours, how much distance it can cover in 18 hours? So we will write distance covered in 1 hour, that is 62.5 kilometer. Okay, so अब 1 आवर का गिवन है और उससे ज्यादा का फाइंड करना है. तो क्या हमने पहले भी किया, होल नंबर्स में भी ये किया है, प्रीवियस क्लासेस में भी किया है कि जब भी 1 का गिवन हो और उससे ज्यादा का फाइंड करना हो तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 18 बाय 62.5. सो डिस्टेंस कवर्ड इन 18 आवर्स इज इक्वल्स टू 62.5 मल्टीप्लाइड बाय 18. वी कैन परफॉर्म द मल्टीप्लीकेशन जो है आप हमें यहाँ रफ में कर सकते हो. 62.5 मल्टीप्लाइड बाय 18. 8 5 are 40, 4 carry, 8 2 are 16 plus 4 20, 2 carry, 8 6 are 48 plus 2 50, 5 2 6. Now add them. 6 plus 5 11. There is 1 digit after decimal, so 1 digit के बाद आप decimal put कर सकते हैं. तो answer will be 1125.0 किलोमीटर. 0.0 लिखने की भी जरूरत नहीं होती. 1125 किलोमीटर्स. ओके,
Question number 12 is find the weight of 16 bags of sugar. Each weighing 48.450 kg. मीन्स 16 बैग्स का आपको वेट फाइंड करना है, जबकि 1 बैग का वेट ये है. तो 1 का गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द वेट ऑफ मल्टीपल बैग. सो उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे. सो फर्स्ट वी विल राइट वेट ऑफ 1 bag, that is 48.450 kg. Okay, now weight of 16 bags, आपको 16 bags का फाइंड करना है. तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाइड बाय 16. हम इसको रफ में मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे पहले. 48.450 मल्टीप्लाइड बाय 16. 6 0 0, 6 5 30, 0 3 carry, 6 4 24 plus 3 27, 2 carry. Now 6 8 48 plus 2 55, 6 4 24, 24 plus 5 29. Now 0 5 4 8 4, add them. 0 0, 7 plus 5 12, 1 carry, 4 plus 1 5, 8 plus 9 17, 1 carry, 4 plus 3 7. Now there are 3 digit after decimals, so mark decimal after 3 digit. 1 2 3. 3 के बाद that will be 775.2. Either you can write 0 0, और अगर नहीं लिखते तो भी कोई मैटर नहीं करता, बिकॉज उसके बाद में जो 0 है वो मैटर नहीं करते. इससे पहले होते, अगर ये ऐसे होता 0.002 तो ये मैटर करता, बट अगर ये है 0.200 तो इन 0 को हम ओमिट कर सकते हैं.